correctly. It is like asking, is there an end of time made up of infinite number of moments or of space that defies measurement? Such questions being illogical or not worth solving. Illogically lies in asking for the end point of an entity which is by definition infinite. Likewise, it is absurd to think of total elimination of endless beings, and issues raised on on this aspect are irrelevant. Infinite numbers of subtractions made from infinity would still have infinity as a remainder, as has been stated in Sankhya Sutra. Like now, living being will at no time be extinct in the universe. The Upanishad also says, if from Purna, full, whole, here infinity, Purna be deducted, what remains will still be Purna. The Smriti says, the universe and habitats of the living being infinite, even continuous liberation of immutable proficient persons will not render it devoid of beings. Okay. अरे भगवान, पढ़ने में जान निकल गई, अब निरंजन की जान निकलेगी समझाने में. I'll speak very less today. Because sutra is big, I will speak less. इतना सारा एक्सप्लेन किया उन्होंने. हाँ. तो फिर कुछ एक्सप्लेन करने के लायक बचता ही नहीं है. तो ये जो प्रीवियस सूत्र वी डिड, ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम. तो पिछले सूत्र में हम लोगों ने देखा कि इट सेज दैट व्हेन dharmavek dhyana has been attained and all the klesha karmas have been removed, or they have been worked on finally, and one is free from them. One is also acquiring such kind of knowledge where everything knowable appears to be very tiny. That means whatever he wants to know, he can know. That state of mind has been attained, where a person is capable of knowing everything and anything. So no matter what the object of knowledge is, that object of knowledge will, or that knowledge pertaining to the knowable object will be very tiny in comparison to the capacity of his knowledge, capacity of his mind to know the things. So having attained that, now what happens is that Purusha, in relation to that Purusha who has attained this freedom from klesha and karma, and who has acquired this kind of capacity for knowledge, the gunas will cease to function. The krama of guna will come to an end. So tatah kritarthanam, जो कृतार्थ हो गया, जो जिसका पर्पस पूरा हो गया, जिसका जो भी अर्थ था, प्रयोजन था, वो पूरा हो गया, तो ऐसे पुरुष के संबंध में परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम, तो गुणों के जो परिणाम है, उनका जो क्रम है, उसका अंत हो गया. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि दो ही इटर्नल एंटिटीज हैं यूनिवर्स में, एक पुरुष है और एक प्रकृति है. प्रकृति भी इटर्नल है, पुरुष भी इटर्नल है, और गुण जो है वो हमेशा बने रहते हैं प्रकृति का भाग होने की वजह से. और तो गुण भी इटर्नल है, जिसको हम प्रकृति कहें वो भी इटर्नल है. तो फिर ये कैसे यहाँ पे 32 सूत्र में बोल रहे हैं कि जो कृतार्थ हो गया उसके संबंध में परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम, गुणों का जो क्रम है वो समाप्त हो गया, और गुणों का क्रम समाप्त भी हो गया. और ये गुण का क्रम मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका जवाब उन्होंने अभी आज वाले सूत्र में दिया है, सूत्र 33 में. क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम.
तो इसका जवाब उन्होंने इस ढंग से दिया है कि ये जो परिवर्तन है या जो क्रम है, क्रम से किसको कहेंगे, क्योंकि क्रम को अगर हम समझेंगे तो फिर हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि 32 सूत्र में वो क्यों बोल रहे हैं कि कृतार्थ के विषय में वो क्रम का समाप्ति हो गया, लेकिन जो अकृतार्थ है, अब इसका इनडायरेक्ट मीनिंग कैसा है प्रीवियस सूत्र का, कि जिसका पर्पस सर हो गया, वो जो कृतार्थ हो गया, उसके केस में तो क्रम समाप्त हो गया, लेकिन बाकी के जो लोग हैं जिन्होंने जो कृतार्थ नहीं हुए हैं, उनके केस में वो क्रम चालू रहेगा। इसका मतलब गुणों का अंत हो गया ऐसा नहीं है, गुणों का क्रम चालू ही रहेगा। तो फिर ये क्रम क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए अभी आज का सूत्र जो है वो है क्षण प्रतियोगी अपरिणाम, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम। So sequence, what is sequence, and what क्रम can be translated as sequence. तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। क्षण प्रतियोगी मतलब whatever exists in the moment, what belongs to the moment, that is what it means. That which belongs to the moments. अगर अरण्य का ट्रांसलेशन देखेंगे तो what belongs to the moments and is indicated by the completion of a particular it is talking about sequence. Yeah, so what belongs to the change to the moments is what is change. So how we understand it, इसको थोड़ा सा मतलब सूत्र बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही टेक्निकल है और बहुत ही गहराई में गया हुआ है। तो इसको, ये सूत्र को डिस्कस करना और समझना मतलब ऐसा ही जैसे हम फिजिक्स का स्पेस टाइम और एनर्जी और वो सब प्रिंसिपल है आइंस्टीन का, वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ऐसा ये सूत्र है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो टाइम के हिसाब से क्षण प्रतियोगी, व्हाट बिलोंग्स टू द मोमेंट्स। नाउ व्हाट बिलोंग्स टू द मोमेंट्स, इफ ही से, अभी मैं तुमको बोलता हूँ कि एक 2 मिनट के लिए शांत होके बैठ जाओ, तो ये शांत, जो मैं बोला 2 मिनट शांत होके बैठ जाओ, इसका मतलब क्या हुआ? 2 मिनट मतलब क्या? 2 मिनट मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 2 मिनट्स? टाइम सर। हाँ, 2 मिनट्स इज टाइम, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? टाइम तो है, लेकिन 2 मिनट क्या है? हमारे दिमाग में तो वही कॉन्सेप्ट है ना, घड़ी की सुई चल रही है तो वो घड़ी में वो सेकंड का वो जो भी मार्किंग की हुई है, तो सुई एक मार्किंग से दूसरे मार्किंग तक जाएगी तो वो 2 सेकंड या 1 सेकंड हो जाएगा, वो हम बराबर। लोग के दिमाग में, बाकी तो कुछ और नहीं है। हाँ, तो मतलब तुमको घड़ी लेके बैठना पड़ेगा हाँ और फिर तुमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो छोटा कांटा है वो 12 से 12 पे आया, 12 से 12 पे आया तो 2 मिनट हो गया। हाँ। हाँ ठीक है, यहाँ तो सो यू हियर you are you are not describing time, you are describing the moment of watch. ड्यूरेशन। Yeah, so you are describing a time duration which is equal to 2 rounds of second kata. हाँ So you are not describing time, you are describing the moment of the kata of the watch. You are understanding? या हाँ, तो इसका मतलब जो हम बोलते हैं कि 2 मिनट के लिए बैठे, तो 2 मिनट क्या है? इट इज अ moment of time, and every second is suppose if we take the minimum unit of the time according to the modern concept of time, it is the second, and if we take it according to the ancient people's measurement, they will call it shana, क्षण प्रतियोगी। So जो इसको हम लोग सेकंड बोलेंगे वो उसको क्या बोलेंगे? क्षण बोलेंगे। तो वो हर एक क्षण में क्या हो रहा है? अब ये जो घड़ियाल है, इसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये हम लोग को प्रिंसिपल समझ में आएगा। तो हर क्षण में क्या हो रहा है? अभी 2 मिनट को छोड़ दो, अभी 1 सेकंड को ले लो, 1 सेकंड में क्या हुआ? वो एक कांटा जो था वो वहां से दूसरी जगह पे चला गया, जो हाँ जहां तो था वहां अगेन, नहीं है। हाँ तो अगेन यू आर रिफरिंग टू टाइम एज अ मोमेंट, या राइट? सो टाइम इज ऑलवेज रिलेटेड टू मोमेंट। तो क्षण प्रतियोगी क्या है? द चेंज विच इज देयर इन द एवरी मोमेंट, दैट इज व्हाट इज क्षण प्रतियोगी।
जो भी बदलाव हर क्षण में हो रहा है उस बदलाव को कहेंगे क्षण प्रतियोगी। तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि क्षण कितने चलते रहते हैं। सो लाइफ इज व्हाट इट इज इटर्नली गोइंग ऑन सीक्वेंस ऑफ टाइम। अभी अभी ये क्लास कितनी देर चलेगा? ये क्लास कितनी 1 देर hour. चलेगा? 1 आवर। 1 hour. हाँ, तो ये 1 आवर में क्षण चलते रहेंगे हाँ. और एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद में हम लोग बोलेंगे क्लास खत्म। तो ये जो 4 बजे क्लास चालू हुआ और 5 बजे क्लास चालू हुआ, तो ये 4 से लेके 5 बजे के बीच में कितने क्षण हुए? बहुत और सारे। हाँ, इन क्षणों का प्रतियोगी क्या है जो क्लास में हो रहा है? 1 घंटे में हमने एक सूत्र कवर किया, बराबर है? Yes. 1 घंटे में हमने एक सूत्र कवर किया। मतलब सूत्र शुरू कब हुआ? जब पहला क्षण चालू हुआ, और जब वो क्षण खत्म हुआ तभी हमने कहा कि अब सूत्र क्लास खत्म हो गया। तो ये जो 1 घंटे का जो टाइम है, इसको एक एक क्षण में अगर देखेंगे तो ऐसा था कि ये क्लास 1 घंटा चला कि हर क्षण चल रहा था? हर क्षण चल रहा था। जब हर क्षण. हर क्षण चल रहा था मतलब ये एक्टिविटी चल रही थी, यही कहेंगे, हम्म। ये एक्टिविटी चल रही थी। तो इसी को ये जो क्षण प्रतियोगी, हर क्षण में जो इनहेरेंट एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी को संबोधित कर रहे हैं कि क्षण प्रतियोगी। तो क्रम क्या है? क्रम को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। क्रम मतलब सीक्वेंस। सीक्वेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि व्हाट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस कंप्राइजेज ऑफ 2 थिंग्स। It is not comprising of 2 things, but then we have to understand from the point of view of how sutras are describing it, that एक तो ये है कि जो उसका एक भाग है जो क्षण प्रतियोगी, हर क्षण में कुछ ना कुछ घट रहा है, हर क्षण में कुछ ना कुछ हो रहा है, वो एक भाग है। लेकिन इसको हमको तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो घट रहा है करके। तो जब क्लास चल रहा है तभी आर यू अवेयर दैट क्लास इज गेटिंग एंड, क्लास इज गोइंग टुवर्ड्स एंड, या क्लास इज हैपनिंग? We are not bothered about that at that time. We are too busy in the activity. Only when 5 o'clock time will occur and we'll say that, okay, here we end the class, then we realize the class has completed, right? But this class was happening every moment of the 1 hour duration for which the time is fixed. So this is in respect of this class. But let us understand the classical example which they have given in the sutra. सूत्र में बोलते हैं कि नया कपड़ा और पुराना कपड़ा, इनमें जो फर्क रहता है, ये फर्क कहाँ से आता है? जो फर्क नए कपड़े में और पुराने कपड़े में जो फर्क आता है वो क्रम की वजह से आता है, वो सीक्वेंस की वजह से आता है। और सीक्वेंस क्या है? हर क्षण में जो कपड़ा है वो पुराना होते जा रहा है, पुराना होते जा रहा है, पुराना होते जा रहा है। और एक क्षण ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब वो कपड़े में सब पुराने कपड़ों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। तब हम लोग कहेंगे कि ये जो कपड़ा नया था वो अब पुराना हो गया। लेकिन जब वो कपड़ा नए से पुराना हो रहा है तो सडनली एट द एंड व्हेन वी आर परसीविंग, तभी पुराना हो रहा है कि वो पुराने होने की प्रक्रिया उसमें चल ही रही थी, चल रही थी। और वो जो प्रक्रिया थी वो हर क्षण में चल रही थी। हर क्षण में कपड़े में परिवर्तन आ रहा था, हर क्षण वो कपड़ा पुराना हो रहा था। लेकिन हर क्षण पे हमको मालूम पड़ रहा था कि कपड़ा पुराना हो रहा है? नहीं। इसीलिए उसको क्षण प्रतियोगी कहा है। तो वो जो एक्टिविटी विच इज हैपनिंग एट द मोमेंट टू मोमेंट स्टेज, we cannot catch that. When we will be able to catch that activity? Only when the sequence has been completed. Parinam aparanta nirgrahya kramah. Krama can be known when the parinam has come to an end. That means the new characteristics have appeared in place of the old characteristics. तो कपड़े में एकदम टाइट कपड़ा, एकदम कलर उसके अच्छे, एकदम फ्रेश लग रहा है, और पुराना कपड़ा कलर्स डल हो गए हैं, हाथ लगाओ तो फटने लगता है।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले नहीं थे कपड़े में, अभी दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि कपड़ा पुराना हो गया। इसका मतलब वो कपड़े के नए से पुराने होने का एक क्रम जो है वो समाप्त हो गया, और वो जो क्रम जब समाप्त होगा तभी हम लोग कहेंगे कि एक सीक्वेंस पूरी हो गई। कैन यू हियर मी? ये हाँ अभी आई तेरी आवाज। हाँ नहीं, लेकिन वो ये वीडियो तो चले गया कहीं, मालूम नहीं पड़ रहा। लेट मी सी, हाँ इट हैज कम बैक। तो अब इसी चीज को हम लोगों को समझना है कि ये जो क्रम से जो बदलाव हो रहा है, तो जो हम लोग बोलते हैं कि गुण जो है हमेशा बदल रहे हैं। ये चीजें हम लोगों ने पहले बहुत डिस्कस की हुई हैं और इनका संबंध पुराने सूत्रों से है। तो गुणास आर ऑलवेज म्यूटेटिंग, म्यूटेशन इज द कैरेक्टर ऑफ गुणास, एंड बिकॉज ऑफ द गुणास एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो वॉट एवर हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, ऐसे जो क्रम है वो असंख्य हैं संसार में। कौन से असंख्य? कौन से संसार में? ये जो क्षणिक संसार है या जो बदलने वाला संसार है, अभी इसमें बहुत सारे क्रम चलते हैं। एक क्रम तो अपने जन्म को लेके ही देख सकते हैं, हम लोग पैदा हुए तो हम लोग कैसे थे, वो क्रम चल रहा है, और वो क्रम आज आज यहाँ पे आके रुका है कि हम लोग अभी जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं। और ये क्रम जब जब ये जीवन समाप्त होगा तो ये क्रम हमारे संबंध से, हमारे जन्म से संबंधित जो क्रम है वो समाप्त हो जाएगा, वी विल बी डेड। पर ये जो लाइफ स्पैन है इसके अंदर पता नहीं कितने सीक्वेंस चल रही हैं। एक सीक्वेंस ये भी चल रही है कि काले बालों का सफेद होना। अभी मेरे केस में आप बोल सकते हैं है, मतलब सफेद बाल भी हैं, काले बाल भी थोड़े थोड़े हैं। बालों का नहीं होना, बालों का हाँ, नहीं होना। बाल होते हुए धीरे धीरे बालों का नहीं होना, ये भी एक सीक्वेंस है। तो जब रोज बाल थोड़े थोड़े कम हो रहे थे तभी नहीं मालूम पड़ता है कि आदमी टकला हो रहा है। जब पूरा बाल चले जाता है तभी मालूम पड़ता है। उसी तरीके से जब सफेद बाल दिखाई देता है तो इसको समझने का ट्राई करेंगे राइट पार्ट अपार्ट। जो काला बाल से सफेद होता है तो कब हम नोटिस करते हैं? जब वो बाल सफेद हो जाता है तब। लेकिन काले में से जब सफेद हो रहा होता है उसको क्या एक दिन में हो जाता है, एक घंटे में हो जाता है? नहीं, नॉर्मली नहीं होता है। शाहजहां के केस में हो सकता है, शाहजहां के केस में हो सकता है, क्योंकि वो मुमताज महल से बहुत प्यार करता था, तो एक रात में बाल सफेद हो गए। लेकिन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के केस में एक रात में, एक घंटे में बाल सफेद होगा क्या? नहीं होता है। बट when do we notice? When it has turned gray, then we notice. So these kind of sequences are eternally going on in the universe. And अब इसको और भी उदाहरणों से समझ सकते हैं। सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है? मिट्टी में से मिट्टी का पानी डाल के उसको एक आकार देना और फिर उसको बेक करना, मिट्टी में से घड़ा बनाना, ये एक सीक्वेंस है। और घड़े का टूटना और छोटे छोटे खपरी में परिवर्तित हो जाना, ये एक सीक्वेंस है। और उसमें से भी और परिवर्तन होते हैं। अब इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। घड़े का एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ कि मट्टी को कुम्हार ने लाया, उसको अच्छे से क्लीन किया, पानी डाला, घड़ा बनाया, घड़े को बेक किया, शायद एक हफ्ते का समय लगा रहेगा। लेकिन एक हफ्ते का समय जो है, एक हफ्ते के समय में वो सीक्वेंस पूरा हुआ जहाँ पे घड़ा मट्टी में से घड़े के आकार में बन गया। मट्टी में घड़ा है छिपा हुआ, लेकिन मट्टी तो घड़ा नहीं है। मट्टी हम देखेंगे तो बोलेंगे मट्टी है, घड़ा देखेंगे तो बोलेंगे घड़ा है। घड़े में नए कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो घड़े से मट्टी से घड़ा बनने का जो सीक्वेंस है वो एक क्रम हो गया। और फिर अब घड़ा बन गया है, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, रख देंगे। How many years it will take for the jar to break and disintegrate? It may take 1,000 years. If it is disturbed, if it is broken, it may break easily very soon. But if it is left on its own, nothing. But even then, the krama is going on. The sequence, Shana Pratyogi,
activity is going on in the pot. एक बार घड़ा बन गया तो वो घड़ा जो है वो पुराना हो रहा है, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि पुराना हो रहा है, अभी अभी थोड़ा पुराना हुआ, अभी थोड़ा पुराना हुआ, अभी थोड़ा, लेकिन समझ में आता है कि पुराना हो रहा है। तो हर क्षण में वो पुराना हो रहा है, एंड देन इट मे ब्रेक ऑन इट्स ओन ऑल्सो, इट मे क्रैक। तभी हम कहेंगे उसका कपाली कब बन गया, मतलब वो टूट गया। तो ये दिस इज अनदर क्रम, और उसमें से डिसइंटीग्रेट होते 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 अगेन इट मे गो इनटू द डस्ट फॉर्म, again it may become small particles. This is a sequence. So like that, so many sequences are going on. So we have to understand कि गुणों का क्रम किसके संबंध में खत्म हुआ? जो जिस पुरुष ने लिबरेशन अटेंड कर लिया उसके संबंध में पुरुष का गुणों का सीक्वेंस, गुणों का क्रम समाप्त हो गया। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। गुणों का क्रम जो है वो कृतार्थ पुरुष के संबंध में समाप्त हो गया, लेकिन बाकी लोगों के संबंध में वो चलते रहेगा। और वो जो गुण है वो, अब यहाँ पे फिर सवाल आता है कि व्हाट अबाउट द क्रम ऑफ द गुणास, विल इट एंड और नॉट? एक पुरुष के संबंध में तो क्रम समाप्त हो गया, लेकिन बाकी लोगों के संबंध में चल रहा है, तो कभी ऐसा हो गया क्या कि कभी वो अंत होएगा उसका? उस ये सब चीजों को, ये सब फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को और आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इतना बड़ा व्यास भाष्य और इतना बड़ा आरण्य की कमेंट्री दी हुई है, जिसमें सब लॉजिकल और इलॉजिकल क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है कि वो आंसर दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते। तो अब इसमें ये सवाल आता है कि ये जो क्रम है, दो प्रकार का क्रम होता है। एक तो जो है नित्य वस्तु में क्रम होता है, और एक है अनित्य वस्तु में क्रम होता है। तो ये जो भी हमने बालों का एग्जाम्पल दिया, घड़े का एग्जाम्पल दिया, शरीर का एग्जाम्पल दिया, कपड़े का एग्जाम्पल दिया, ये अनित्य वस्तु हैं। अनित्य वस्तु इसीलिए है कि they have come into existence and we know that they are going to get destroyed. With time they will not be there. So that means they come into existence. When they come into existence, they have got certain characteristics. When they are destroyed, the characteristics are gone, and then we refer to them as मेरे पास एक कपड़ा था, वो पुराना हो के फट गया, पता नहीं अभी कहाँ गया, it is lost. So we are referring to that cloth as a past, present and then future. फ्यूचर में अभी वो पता नहीं कपड़े का क्या हुआ रहेगा, वो मट्टी में मिल गया रहेगा। तो एवरी ऑब्जेक्ट इज रिफर्ड टू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से। उसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? नित्य। एक तो है जो अनित्य है। तो ऐसे संसार में जितनी भी चीजें अनित्य है, हमारा शरीर, हमारा मन, हम जो एक्टिविटी करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, नई नई चीजें वो खराब होती हैं, खत्म होती हैं, ये सीक्वेंसेस चल ही रहे हैं। तो इस ढंग से, और इसको एक्सप्लेन करने का तात्पर्य क्या है, इसको एक्सप्लेन करने का इंपॉर्टेंस क्या है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आर अराइजिंग, इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ म्यूटेशन, चेंज ऑफ सीक्वेंस। तो चैप्टर 3 में एक जो सूत्र है, क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। परिणाम और क्रम हमेशा साथ में जुड़े रहते हैं। क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु, ये एक सूत्र आता है चैप्टर 3 में। तो ये whenever new characteristics are arising, we refer to the past characteristic as something which is gone, and new characters. So new characteristics will always come into existence as a result of mutation, as a result of change, and this change is termed as krama. तो जैसे अब इसको योग के संबंध में देखेंगे, तो योग में जो व्युत्थित चित्त है या मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त चित्त है, वो एकाग्र कैसे होता है? क्षिप्त चित्त के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण धर्म अलग अलग हैं। मूढ़ चित्त के गुण धर्म अलग अलग हैं, और ये गुण धर्मों में परिवर्तन होके व्यक्ति का चित्त एकाग्र हो गया। इसका मतलब क्या है? उसमें नए कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, नए धर्म उसमें आ गए। तो ये नए धर्म आने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहेंगे क्रम। क्रम क्या है? क्रम is a sequence in which the changes are taking place, and these changes are noticed only when the क्रम has been completed, the sequence has been completed. Because what will indicate the completion of sequence? Appearance of new characteristics will indicate the completion of a sequence. तो ये चल रहा है।
तो एकाग्र चित्त पे परिवर्तन हो गया। एकाग्र चित्त के लक्षण अलग है, क्षिप्त चित्त के लक्षण अलग है। तो ये जो पूरी योग की प्रक्रिया है, क्षिप्त चित्त से एकाग्र चित्त की स्थिति तक अपने मन को ले जाना, अपने चित्त को ले जाना, इसको क्या कहेंगे? इसको क्रम कहेंगे। और ये हमारा ग्रोथ का क्रम है। पहले विवेक नहीं था, ज्ञान नहीं था, या प्रक्रिया के जरिए, क्रम के जरिए हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान के जरिए वैराग्य प्राप्त किया, और वैराग्य प्राप्त करने के बाद में we lost interest in everything, and then we are attaining moksha, or we are attaining liberation. So the sequence in respect of us who are attaining liberation, the gunas, their sequence will end, but in case of the other people, that sequence will continue. तो दो प्रकार के चेंजेस हैं, दो प्रकार के क्रम हैं। एक तो अनित्य वस्तु में, नित्य वस्तु में। नित्य वस्तु के, अनित्य वस्तु के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे। नित्य वस्तु कौन सी है? पुरुष नित्य है और प्रकृति नित्य है। तो पुरुष जब अपने रूप स्वरूप में स्थापित हो जाता है तो उसमें कोई परिणाम नहीं होता है, पुरुष में कभी कोई चेंज नहीं होता है। पुरुष इज इटर्नली इम्यूटेबल, उसको बोलते हैं अपरिणामी नित्य। पुरुष को कहते हैं अपरिणामी नित्य। और प्रकृति जो है वो भी नित्य है, इट इज इटर्नल। बट किस प्रकार की इटर्नल है वो, किस प्रकार की नित्यता है प्रकृति में है? म्यूटेबली इटर्नल, ऑलवेज म्यूटेड। तो गुणों का परिणाम हमेशा चलते रहेगा, बट इटर्नली इट विल गो ऑन। इसीलिए ये सब एक्सप्लेनेशन उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे दिए हैं। We'll not go into the other philosophical parts because there's no point, because there's no use of discussing that. So here we have to only understand that what is sequence. Sequence is the activity which is taking place in a thing from moment to moment, and we are able to understand this change only when the manifested characteristics are visible to us as a result of this sequence which has taken place. तो हम यंग में से ओल्ड हो गए, बच्चे में से बड़े हो गए, बड़े में से बूढ़े हो गए, ये एक सीक्वेंस है। तो ये बुढ़ापा धीरे धीरे जब बूढ़े हो रहे हैं तभी तक शायद हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बार जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे तो फिर मालूम पड़े, हाँ अभी तो अभी हो गया, टाइम हो गया, इसी टाइम हो गया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है निरंजन, किसमें कि जब तुम क्षण की बता रहे हो ना, हाँ। तो ये क्षण का कहीं भी सूत्र में कहीं मेजरमेंट भी बताया गया है ना? हाँ, मतलब वो क्षण मतलब मात्रा, क्षण की मात्रा बताई गई है ना? हाँ, क्षण की मात्रा इस ढंग से बताई गई है कि वहां पे भी क्षण को इसी ढंग से इस्तेमाल किया गया है कि क्षण वो चीज है, इट इज द मिनिमम यूनिट ऑफ टाइम इन विच यू कैन नोटिस द चेंज इन समथिंग, in which a thing leaves its place and goes into next place. The minimum time required by a thing to change its place is what is क्षण। तो वहां पे भी उसको एक्टिविटी के साथ संबंध किया गया है। जैसे अभी वो क्लॉक के साथ में 2 मिनट, तो सेकंड का काटा मुंह हो रहा है, एक्टिविटी के साथ क्षण का संबंध है। यू कैन नॉट कंसीव प्योर टाइम, अदरवाइज व्हाट इज टाइम? लेकिन इफ यू क्लोज योर टाइम, टाइम इज अ सक्सेशन इन अवर कॉन्शियसनेस, सक्सेशन ऑफ मोमेंट्स इन अवर कॉन्शियसनेस। तो आगे का एक्सरसाइज हम लोगों ने किया नहीं कि मैं बोलूंगा कि घड़ी की तरफ मत देखो, आंखें बंद कर लो, और मैं बोलूंगा कि 2 मिनट के लिए आंखें मत खोलो। तो अभी तक अपने को जो मालूम है 1 मिनट 1 सेकंड इतना होता है अंदाजे से, किसी का 2.25 मिनट होगा, किसी का 1.25 मिनट होगा। तो आप 1.25 मिनट का आप आंखें खोलेंगे, मुझे लगता है 2 मिनट हो गया। कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि व्हेन यू क्लोज योर आईज, द कॉन्शियसनेस इन दैट देयर इज अ मोमेंट, अगेन इन द माइंड आल्सो देयर इज अ मोमेंट, फ्रॉम दैट मोमेंट वी कैन मेक आउट दैट टाइम हैज पास्ड। जब सुखासन करने बैठते हैं तभी थोड़ी देख रहे होते हैं टाइम कितना हुआ, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ब्रेथ। पर वो थोड़ी देर के बाद में अंदाजा आता है कि हाँ मुझे लगता है 10 मिनट हो गया मैं सुखासन कर रहा हूँ, या 15 मिनट हो गया सुखासन कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट, अभी हर एक ऑब्जेक्ट जो मैनिफेस्ट हुआ है, हर एक का कोई ना कोई क्रम चल रहा है, ठीक है उसका। तो क्या ऑब्जेक्ट वाइज क्रम का ड्यूरेशन या मतलब मैनिफेस्ट या जो बोलते हैं ना क्षण का ड्यूरेशन अलग होगा कि सेम होगा? सेम है सभी में, क्योंकि वो तो हर क्षण में बदलाव आ रहा है। क्षण इज रिफर टू कैपेसिटी ऑफ द माइंड टू अंडरस्टैंड टाइम। वो तो सभी में सिमिलर है ना, तेरे में मेरे में 1 सेकंड तो 1 सेकंड ही है ना। तो वो ड्यूरेशन मतलब वो चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोग की अभी ओके, जैसे अभी हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट है जैसे
एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का जो होता है ना, उनका हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। जैसे पत्थर जो है उसका जो चेंज होने का जो समय है वो काफी लंबा होता है इन कंपैरिजन टू लिविंग थिंग्स। So, how do we explain that in this That context? also you will explain only in terms of the momentary, क्षण प्रतियोगी, हर क्षण में कितना बदलाव आ रहा है। लिविंग बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत फास्ट चेंजेस आते हैं। पत्थर शायद 1000 साल तक, 2000, 3000, 5000 साल तक पत्थर को कुछ नहीं होगा, लेकिन लिविंग बॉडी तो 1 साल के 100 साल में खत्म हो जाएगा, 2-4 साल में खत्म हो जाएगा। तो क्षण तो वही रहने वाला है, लेकिन परिवर्तन कितनी गति से हो रहा है और उसका वस्तु का स्वभाव कैसा है, ये हाँ, वो सीक्वेंस वस्तु के कहाँ हो रहा स्वभाव है। पे डिपेंड करेगा। हाँ, करेक्ट। और ये सीक्वेंस किस चीज में हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। गुण तो 3 गुण तो पता नहीं कितने लाखों ऑब्जेक्ट्स, लाखों सीक्वेंसेस चल रही है इस हाँ, फील्ड पे। हमारे शरीर में अभी कितनी सीक्वेंसेस चल रही है। दोपहर का खाना खाया, वो अभी पच रहा है, वो सीक्वेंस चालू है। जिसका डाइजेशन जैसा रहेगा वैसा उसका सीक्वेंस होगा, उतना टाइम रहेगा। तो ये योगी जो है, इस वजह से योगी लोग ना अपनी उम्र को जैसे रोक लेते हैं। समझो कि हम लोग कहते हैं ना कि कोई 500 साल या कोई जीता है लंबे समय तक, ऑन एवरेज को 100 इयर्स का किसी का लाइफ टाइम है, पर योगी जो है वो उम्र को रोक लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने वो जो क्रम तो वही चल रहा है, लेकिन क्रम का जो परिणाम आ रहा है उसको उन्होंने रोका है। क्या ऐसा हाँ, कुछ है? गति को रोका हुआ। गति को रोका है। क्रम वैसे एक्चुअली चलता रहेगा। हाँ। एक्चुअली इफ यू गो टू सी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि इट्स टाइम इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, और टाइम के बारे में फिजिक्स में अलग अलग धारणाएं हैं। तो कहीं ना कहीं उसका मन के साथ ही संबंध है। जैसे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द स्पेस अराउंड अस, द चेंजेस इन द माइंड आर रिलेटेड टू टाइम, so it is always a mental factor. So it's a ये I'll suggest one thing, ये मेरे ख्याल में इसमें ये जो भास्वती वाला बुक है उसमें एट द एंड ऑफ द बुक देयर इज अ एसे स्पेस एंड टाइम, Okay. उसमें होना चाहिए। अगर नहीं है तो हिंदी वाला जो बुक है काल और देश, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल विषय है, इसको हम लोग नहीं डिस्कस अभी कर सकते। अभी जो हम लोग जो इसमें जो 3rd चैप्टर में है धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, तो ये जो अवस्था परिणाम और लक्षण परिणाम, ये टाइम रिलेटेड मतलब उसको समझने के लिए वो टाइम के कॉन्सेप्ट है ना, वो अवस्था और लक्षण परिणाम। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बराबर है वो। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, उसमें जो एक्चुअल परिणाम जो है 3 परिणाम के बारे में बात कर रहा है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। लेकिन वास्तव में परिणाम कहाँ हो रहा है? अवस्था परिणाम, it is a conception. It is a conception related to the object in which the changes are taking place. अवस्था परिणाम और लक्षण परिणाम उसी चीज को लेके पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, आगे कैसा रहेगा। That means what is the real change, what is the real parinam? Dharma parinam is the only real parinam. The other 2 parinamas are not real parinamas, they are conceived. So real thing is that in eternity everything is changing, changefulness, new characteristics, new things are coming into existence. That is the real thing. तो इसका मतलब क्या हुआ निरंजन कि ये जो हम जो परिणाम देख रहे हैं, जो चेंज देख रहे हैं, वो एक्चुअली इमेजिनरी है। इमेजिनरी से ज्यादा ये कहेंगे कि वो व्यवहारिक तौर पे जरूरी है एक दूसरे को समझाने के लिए या खुद समझने के लिए, क्योंकि हमारे माइंड में वो लिमिटेशन है कि हम वैसे ही समझ सकते हैं और वैसे ही हम समझा सकते हैं। तो मैं अगर तेरे को बोलूं कि मैंने एक उड़ता हुआ आदमी देखा, तो तुम कहोगे कब देखा, कहाँ देखा, कब देखा, कहाँ देखा। ये कब इज रिलेटेड टू टाइम, कहाँ देखा इज रिलेटेड टू स्पेस।
So we cannot think in terms of going beyond space and time. Our mind is always limited in space and time. So they are necessary for व्यवहार. नहीं तो हमारे संसार का हमारा काम नहीं चलेगा. तो हम लोग मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? जब तक ये तय नहीं होगा तब तक निश्चिंतता नहीं आएगी. मतलब वो जब जब निर्वाण की जो स्थिति होती है उस वक्त हमको ये समझ में आ जाता है कि ये जो परिणाम और चेंजेस हमने देखे थे वो एक्चुअली इट्स जस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ योर माइंड, एंड एक्चुअली जो चीज जैसी है वैसी ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं आया है. वो जब ये बात स्टेबलाइज होते है तब हमारा जो मोह है वो इन चीजों से छूटेगा, अदरवाइज नहीं छूटेगा. दैट इज व्हाई दे, ऐसा कुछ है. नहीं, they may appear like a dream, but they have happened. They are in real time. They are so because what you are saying will amount to that it was false. It is not false. भले अभी पहले की घटनाओं को याद करो, आज से 5 साल की पहले की बात. टेंजाइबल तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है. It appears as a dream, but it did occur. It did happen. So it was real. When it was happening, it was real. उसके बेसिस पे तो तुम आगे का जीवन बना रहे हो ना. जो कुछ घट गया है उसके बेसिस पे तो तुम आगे का जीवन जी रहे हो और उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो आगे का. इट हैज टू बी रियल, अदरवाइज यू विल गो रॉन्ग हियर आल्सो. इफ अगर उसको जुटलाएंगे तो अभी के अनुभव को भी जुटलाना पड़ेगा ना, क्योंकि व्हाट इज द गारंटी कि अभी का अनुभव सच है. अगर पहले का झूठ था तो अभी का भी झूठ होगा. पहले का इमेजिनरी था तो अभी भी इमेजिनरी रहेगा. So Sankhya and Yoga are very clear on these things. They take this Prakriti and it's this manifestation as real thing. Prakriti सत्य है. प्रकृति सत्य है. प्रकृति और पुरुष दोनों सत्य है, असत नहीं है. You're getting the point? Yeah. Because if you think that it was not right, it was not real, then ये उसको एक illusion समझेंगे. अगर illusion समझेंगे तो अगर वो illusion था तो what is the guarantee कि अभी जो है वो illusion नहीं है. That means it has to be real. If this thing today is real, that means what we have gone through is also real. वो जो मायावाद की थ्योरी है या जो वेदांतिक थ्योरी है वो इसी पे इसी के आधार पे. So this is a very subtle difference we have to understand. When you are denying when you are denying reality to every experience of yours as illusion, then what you are thinking also might be illusion. Who will say for sure that it is not illusion? तो मतलब जब प्रकृति भी रियल है और पुरुष भी रियल है तो फिर ऑब्वियसली वो जो एक्सपीरियंस इसीलिए सांख्य योग बहुत ही क्लियर है इस बारे में. प्रकृति एंड पुरुष दो एंटिटी हैं एंड दे आर इटर्नल एंड दे आर सत, दे आर रियल. ठीक है. मैं सोचा कम बात करूंगा, फिर भी बहुत बात की. तो मेरे सामने बैठा है, मेरे को थोड़ी बोले दूंगी. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. चलो बाय निशी.